अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई है। ईरानी सदर ने टेलीफोन करके खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बेहतरीन सिफारतकार हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दलेराना कार्रवाई की, अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाए। पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। Islamic Republic of Iran, our second home, a very productive and useful meeting, all areas of our mutual interest and cooperation. Took this opportunity to thank dear brother President Masoud Pezeshkian for taking the trouble to call me and showing his concern on the evolving situation in the subcontinent a few weeks ago. Brotherly feelings for the people of Pakistan. My dear brother, I deeply appreciate your sense of concern. Abbas Irakchi, an outstanding diplomat. Brave actions by our outstanding armed forces. Infinite support for the people of Pakistan to our armed forces. We want peace and we will work for peace in the region through talks on the table, resolve our outstanding issues, including Kashmir problem, according to, but if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country. We condemn the untold stories of miseries and atrocities in the land of Gaza, where more than 50,000 Palestinians have been martyred. It's high time that international community uses its influence to bring ceasefire and lasting ceasefire in that part of the world. Otherwise, posterity will not forgive us. We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program. दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि सियासत, मईशत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मक़दम करते हैं। फ़लस्तीन में होने वाली नस्ल कुशी आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। پاکستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تاریخی ما برگرفته از پیوندهای تمدنی فرهنگی گسترده است که در رابطه حاضر میان این دو کشور را رقم زده است و به قرنها و هزارهای گذشته برمیگردد. دو کشور در بسیاری از موضوعات مرتبط با منطقه، جهان اسلام و مسائل بین المللی مواضع و دیدگاه‌های مشترکی داریم. به طور مشترک بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی تاکید داشتیم. مرزهای مشترک دو کشور باید عاری از ناامنی و حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و جنایتکار باشد. جمهوری اسلامی ایران برقراری آتشبس و صلح بین پاکستان و هند رو ازش استقبال میکنه. بدون شک حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و به شیوه های مسالمت آمیز و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت و حمایت کشورهای غرب رو به شدت محکوم میکنیم و از کشورهای اسلامی برای حمایت کامل از فلسطین و مردم مظلوم غزه
همه را فرا می‌خوانیم. अभी आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान से मुतालिक बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान तेहरान में सादाबाद महल आमद पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब हो गई। फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्ती आला है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को फंडिंग करती हैं। मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती और झूठ की सियासत बेनकाब हो गई है। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर बीजेपी के सदर का इंतखाब भी मौखर कर दिया गया। दी एशियन एज के मुताबिक मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली थी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा और रैलियाँ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में साजिशें होती रही हैं। मोरो में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की गई, पुलिस पर हमले किए गए। आज पुलिस एहलकार दो शहरियों को जख्मी किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश कर दिए। मजीद कहा, मोरो में भी GA सिंध के कलअदम शफी बरफत ग्रुप ने एहतजाज की कॉल दी थी। बरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात और दोस्त ममालिक के शहरियों पर हमलों में मुलव्वस है। कुछ शरपसंद गिरफ्तार करके पर्चे काटे हैं। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ शरपसंद अनासर भी मौजूद थे जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। ये एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ। पुलिस पे फायरिंग की जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है। और शफी बुरफत जो हैं वो खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, इस तरह के बाकी जितने भी अहम तनसीबात हैं उस पे हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का सूबा बचाओ तहरीक के तहत एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। हाथापाई असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, गेट तोड़ दिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शदीद चैलेंज की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने PTI के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। कुर्सियाँ, खेमे और बाकी सामान जल गया। पुलिस ने रेड जोन जाने वाला खैबर रोड बंद कर दिया। नैब ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जब्त शुदा प्रॉपर्टी नीलाम करने का ऐलान कर दिया। नीलामी के हवाले से इश्तिहारात जारी कर दिए गए। नीलामी का मकसद डिफॉल्ट शुदा रकम की वसूली है जिस पर बहरिया टाउन नैब के साथ प्री बार्गेन कर चुका है। ऐलान के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और डेरा गाजी खान में बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम की जा रही हैं। इश्तिहारात में बहरिया टाउन फेज़ 2, फेज़ 4 और सफारी विलास की प्रॉपर्टीज़ नीलामी के लिए पेश की गई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में सिनेमा, शादी हॉल, सफारी पार्क, स्कूल और बहरिया टाउन हेड ऑफिस शामिल है। पानी PTI की रिहाई और डील की खबरें सच हैं तो फिर 2-3 साल से तकारीर का तमाशा क्यों लगा रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया कि अदम एतमाद लाने की बातें करना छोड़ दें। कहा कि PTI की सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो पार्टी के तर्ज़ सियासत के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI के 20 से 25 लोग उनका साथ ही छोड़ जाएं। मेरा ख्याल है तो फिर इतना वक्त कौम का ज़ाया क्यों किए। ये इतना हिजान, इतना शोर शराबा, इतनी तकारीरें, ये जो पीछे पूरे 3-4 साल से एक ड्रामा लगाया हुआ है, तो फिर उसकी जब ये बानी या चेयरमैन वटेवर जो भी आपने कहते हैं, तो वो फिर ये क्यों लोगों को भड़काया। ऐसा कोई काम करेंगे तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ उनके अपने वोटों में से काफ़ी सारे वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको इस तर्ज़ सियासत पे बड़ा शदीद एतराज़ है। कोई ऐसा काम ना करना, 20, 22, 25, 30 किसी हद तक तो बात जा सकती है।
मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले, मुल्क के बेशतर इलाकों में 27 मई से 1 जून तक तेज बारिशों का इम्कान है। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 27 मई तक 1 जून तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, मरी, अटक, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। कहीं जालाबारी भी और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। इस दौरान खड़ी फसलों, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा मोहतात रहें। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की बात करेंगे, जिसकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर कलंदर्स को 4 साल में 3 टाइटल जितवाने वाले शाहीन शाह आफरीदी को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। PSL टीम में सीजन 10 की फातेह लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 3-3 खिलाड़ी शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, डेविड वार्नर, जेम्स बिन्स, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फ़हीम अशरफ, हसन अली, अली रजा और अबरार अहमद पर मुश्तमिल है। कराची किंग्स के खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी हैं। हज टूर ऑपरेटर्स ने 67,000 आज़मीन के हज की सादत से महरूम रह जाने का जिम्मेदार सऊदी हुकूमत की नई पॉलिसी को करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जिन आज़मीन के पैसे सऊदी अरब जा चुके हैं उन्हें मौका दिया जाए कि उनके पैसे सऊदी अकाउंट में पड़े रहें। अगले साल उन्हें मौजूदा साल के हज पैकेज पर ही हज कराया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वियतनाम के दौरे पर मौजूद फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को उनकी अहलिया ने थप्पड़ मारा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सदर मैक्रोन का तैयारा रनवे पर उतरा तो सदारती तैयारे के दरवाजे पर फ्रांसीसी सदर किसी से उलझते नजर आए। इस दौरान किसी का हाथ मैक्रोन के चेहरे पर आया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सदर मैक्रोन को थप्पड़ मारने वाला हाथ उनकी अहलिया का था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।